I'm sorry, beta, little connectivity issues at our side. Can you see the screen now? Can you hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, thank you. अच्छा, सबसे पहले मैं तुम लोगों को बताऊं, तुम लोगों ने परेशान बिल्कुल नहीं होना. ये सारा ऑनलाइन पीरियड चल रहा है, हमें अंदाजा है. हमारे लिए भी उतना ही पढ़ाना मुश्किल है जितना आपके लिए पढ़ना, और हमें भी उतना ही कम मजा आता है जितना आप लोगों को फेस टू फेस ज्यादा बेहतर रहता है. सो बेटा, सिर्फ ये असेसमेंट जो हम आपको दे रहे हैं, दिस इज टू इम्प्रूव योर इंटरनल असेसमेंट, क्योंकि कुछ बच्चों ने बहुत बुरा परफॉर्म किया है. सो हमने सबसे पहला टेस्ट ओपन बुक दी है. They have a chance to improve their assessment. Please take it seriously. ये internal assessment में count होगा. मैं इसीलिए बार बार आपको कह रही हूँ, this is for you people. वरना तो हम आपको वैसे टेस्ट दे दें. ओपन बुक टेस्ट का मकसद ये है कि जिन बच्चों की असेसमेंट अच्छी नहीं आई, हम उसको जरा सा ऊपर लिफ्ट कर सकें. ठीक है? So let's start. So this is the structure of kidney. So whenever we talk about diseases of kidney, we can broadly divide them arising from 4 different parts of the kidney. One is this glomerulus. Can you see the cursor? Nazar aa raha hai? Cursor beta nazar aa raha hai? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Glomerulus beta. This. Yes, ma'am. These are the tubules, and then we have interstitium, and then we have blood vessels. So there are 4 areas which can cause the dysfunctioning of which can cause diseases. Number 1, glomerulus. Number 2, tubules. Number 3, interstitium. And number 4, blood vessels. We'll take them one by one. So first of all, we'll start with the most difficult part of kidney, which is the glomerulus. The most challenging, the most difficult part, from where you get the maximum MCQs. So let's start with the structure of nephron. Okay, this is the glomerulus. Sabko aata hai. Just a quick revision of the structure of the glomerulus. This is glomerulus, which is made up of 2 types of things. One is the Bowman's capsule, this one, and the other one is this red area, which is called the capillary tuft. So both the capillary tuft and the Bowman's capsule make up the glomerulus. So this is the glomerulus. This is the Bowman's capsule, and these are the tuft of capillaries, and these both unite to form the glomerulus. Now, what is this Bowman's capsule? Bowman's capsule is nothing, but that is a double-lined, please remember my words, it's a double-lined, cup-shaped structure, the concavity of which holds the tuft of capillaries, right? So Bowman's capsule, ये बहुत गौर से देखना, ये एक चीज आगे glomerulonephritis की pathogenesis में involved है. So Bowman's capsule is basically a double-lined, cup-shaped structure in the concavity of which you see the glomerular capillaries. The outer layer is lined by cuboidal epithelium, and the inner layer is lined by flattened epithelium to facilitate ultrafiltration, right? So the outer lining, here is the cursor, this. So the outer lining, that is called the parietal lining of the Bowman's capsule, and this parietal lining, sorry, this is the outer lining. This is called the parietal part. This is called the visceral part, and in between there is a space. In this space, we have just the ultrafiltrate. समझ आ गई इसकी? Yes, ma'am. समझ Yes, आ गई? ma'am. Yes, ma'am. अच्छा. अब जो दूसरा पार्ट है ना, that is the tuft of capillaries बेटा, ये वाला. Tuft of capillaries is again made up of 2 parts. One are these capillaries जो कैसे loop around की हुई हैं, and the other one is the matrix. The matrix which is actually supporting and holding these capillaries. अब ये सोचे capillaries are just like रस्सी. So अगर वो rope की तरह हैं, तो उनको hold कौन कर रहा है अपनी जगह पे? That is the matrix, and the matrix of this area is called mesangium. समझ आ गई बेटा? So you have the glomerulus is made up of 2 parts. One is the Bowman's space, Bowman's capsule,
and the other one are the tuft of capillaries. The Bowman's capsule has an outer parietal layer, this one, and an inner visceral layer, and in between you have a clear space. बस इतना याद रखना है Bowman's के बारे में. And coming to the capillary tuft, in this concavity you again have two areas. One are these capillary loops, and the second thing which is holding this capillary loops in place and supporting it, and that is the matrix, which is called, क्या कहते हैं इसको हसन? Mesangium, ma'am. मैट्रिक्स का नाम है जी उमर. Mesangium. शाबाश, Mesangium. mesangium. ठीक है, that is called mesangium. So इधर तक समझ आ गई आप लोगों को? अब ये देखो, ये अब आप कैन यू मेक आउट, ये अगर डायग्राम आपको समझ आ गई ना, you will be able to understand the entire glomerulonephritis comfortably. So this is actually the parietal epithelium, which is जो आपने ये देखा ये सीलियां हैं. This is the parietal epithelium, this is the parietal epithelium, and this is the visceral epithelium. Sorry, this is the visceral epithelium. जो यहाँ पे आपको बहुत दूर नजर आ रहा है ना, actually it is approximated, it is just in close proximity with this tubules, with this capillary. ये capillary tuft, ये और ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं actually. ये तो diagrammatically show करने के लिए इन्होंने ऐसे बनाया ना, otherwise you don't find any space between these two. So this is, what is this? Right. This visceral, ma'am. Visceral layer. Parietal बेटा, parietal. जो बाहर होती है वो parietal है, जो परे है, जो परे है that is the parietal layer. जो visceral layer है वो करीब है. ठीक है? So this is the परे वाली is the parietal layer. This is the visceral layer. Yeah, this is the visceral layer. ठीक है बेटा? Visceral layer is in close proximity with this tuft. And this visceral layer has processes, amoeba-like processes, जिनको हम foot processes कहते हैं. कौन बच्चा मुझे बताएगा what is the purpose of this arrangement? Foot-like processes की arrangement का क्या फायदा है? कौन बताएगा मुझे? Ma'am, to increase the surface area. Excellent. To increase the surface area so that we can have maximum absorption, ultrafiltration. ठीक है? So very well done. अब ये चीज आपने देखो. So what is this? ये एरिया क्या है बेटा? Mesangium, ma'am. No, 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 not mesangium. तस्वीर में देखो क्या है ये एरिया? ये कलर किसका है? मैम ये क्लियर स्पेस है. नहीं बेटा, Here, ma'am. शाबाश. ये क्या एरिया है? Visceral. शाबाश. This is the visceral layer. बेटा मैं इस पे बहुत टाइम लगाऊंगी, इस वजह से अगर ये समझ आ गया आपको सब समझ आ जाएगा. मैं फर्स्ट 2 लेक्चर्स में आई विल गो वेरी स्लो ताकि आप लोग मेरी पेस पकड़ सको. दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट एस्पेक्ट जो बहुत लोगों को नहीं एंड तक समझ आता. सो रिमेंबर दिस इज द विसरल लेयर बेटा, दिस इज द विसरल लेयर, और यहाँ पे वो ये नजर आ रही है. दिस विसरल लेयर इज क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद द कैपिलरी टफ्ट. This is the capillary tuft. Understand? And this visceral layer sends out processes, foot processes, which are called podocytes. So ये ऐसे था, इसने foot processes दिए to increase the surface area, and between these foot processes you have slit-like spaces, as you can easily appreciate here. ये slit-like spaces हैं, देख रहे हो? इनसे एब्जॉर्प्शन होती है. सो अभी तक हमने बोमेन्स कैप्सूल को रिवाइज करते हैं. बोमेन्स कैप्सूल की खास बातें. नंबर 1, इट्स अ डबल लेयर्ड सी शेप्ड और कप शेप्ड स्ट्रक्चर. इट हैज एन आउटर पैराइटल लेयर एंड एन इनर विसरल लेयर. द विसरल लेयर सेंड्स आउट प्रोसेसेस, finger like projections, which are called foot processes. And number 5, जो स्पेस है ना, दैट इज अ क्लियर स्पेस. एक्चुअली इसके अंदर कोई सेल नहीं होना चाहिए. ये मैं बार बार इसलिए एम्फेसाइज कर रही हूँ क्योंकि कुछ डिजीजेस आएंगी जिसके अंदर यहाँ पे सेल्स आ जाएंगे.
So आपने Bowman spaces के बारे में ये 4-5 बातें याद रखनी है. Number 1, it is double layered. The outer layer is, परे वाली layer is Upper layer is parietal. अंदर वाली layer is. Visceral. What is the very important thing associated with the visceral layer? Very important baat. The Podocytes. Close proximity. It is in close proximity with Excellent. tuft of It is in capillary. close proximity, and to increase the surface area, It has podocytes. processes which are called podocyte Podocyte. process. ये भी मैं बार-बार इसलिए बता रही हूँ कि आगे problems इधर से आनी है. फिर ये this is can you see my hand beta? Yes, ma'am. ये hand is the visceral peritoneum, and these are the podocytes. So in between the podocytes, you have spaces which are called the slit-like spaces. They further facilitate ultrafiltration. ठीक है बेटा? Yes, ma'am. So we are done with, or plus in between the visceral and the parietal layer, there is a clear space जिसके अंदर cells नहीं होने चाहिए. This is all we have to remember about the Bowmans. Please, अगर आप लोगों ने ये चीज, वैसे तो lectures LMS पे चले जाएंगे, सुन लेना अगर if you people will have time. Otherwise, please note it down. कहीं पे ये चीज ऐसे नहीं दी है. You will not be able to understand it the way I am telling you. ठीक है, ये आपने Bowman space की 5 चीजें याद रखनी है. Now coming to the capillary tuft. In the capillary tuft, we have 3 things to remember. कौन सी 3 चीजें हैं capillary tuft में? क्या-क्या नजर आ रही हैं? Number 1, Basement membrane. Capillaries and matrix. the basement membrane. Then Endothelial cell lining. very good, endothelial cell lining. And then Pericytes. Mesangial cells. these are not pericytes. Pericytes हम usually उधर करते हैं जहां पे हमारा granulation tissue या वो बन रहा होता है. These are the cells जो कि बिल्कुल line कर रहे होते हैं normally endothelial linings of capillaries को, ठीक है, या vessels को. लेकिन ये जरा एक स्पेशल स्ट्रक्चर है बिकॉज यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन चाहिए. तो इसकी स्ट्रक्चर क्या है ये बताओ, शाबाश. वन इज दिस ब्लू कलर. बॉयज प्लीज आप लोगों ने मुझे बताना है आपको ये ब्लू ही नजर आ रहे हैं? Yes. Yes, ma'am. Yes. क्योंकि जब भी मैं अपने बेटे से बात करती हूँ ना तो जो मैं कलर बताती हूँ उसका फर्क कलर बताते हैं. सो दिस इज फॉर मी, दिस इज ब्लू, दिस इज ब्लू एंड दिस इज रेड. ठीक है, this is red. So this is the, what is this? This is the capillary endothelium, right? And what is this color? Girls, आप बताएं. Purple. Boys, आप बताएं. Purple. सही सही बताओ. वही purple. अच्छा, okay, well. So हम लोगों का consensus है. So this purple one is the mesangium or the matrix, right? And what is this cell called? It is the mesangial cell. Mesangial matrix और fluidity है ना जरा, लेकिन mesangial cell या mesangial cell is the actual cell. ठीक है? So अब we'll discuss these 3 structures in detail because this is the basic of all renal function tests of every pathology going on in the glomerulus, right? So the 3 things besides the Bowman's capsule in the glomerulus is the basement membrane from जी बेटा, आप कुछ कह रहे हो बेटा? नो मैम, रिपीट करे था आपके साथ. जी बेटा मैं कर रही हूँ. सो जो कैपिलरी टफ्ट है ना, इसमें 3 चीजें अब आपने याद रखनी है. द आउटर वन इज दिस वन, ये वाला. This blue continuous layer, this is a layer which is continuous except here. मिली भी नहीं है, बाहर से मिली हुई है, अंदर से नहीं मिली हुई. This is the basement membrane. Second is the capillary. This is the capillary. This one. And number 3, this purple area, this is the matrix. Is specialized matrix को in kidney we call, in glomerulus we call mesangium. And this is the cell which is present and lays down the mesangium. This is called the mesangial cell. So the 3 things in the center or concavity of the Bowman space is the basement membrane. Number 2, the capillaries.
And number 3 the mesangium. Mesangium. ठीक है ना बेटा? अब इनकी खास बात क्या है? द बेसमेंट मेम्ब्रेन की खास बात ये है, हेयर आप कभी कभी सोचो कितना इंट्रिकेट स्ट्रक्चर है अल्लाह मियां ने जो हर सिस्टम में बनाया हो। हम लोग तो पढ़ पढ़ कर जो है ना वो सोच सोच के समझ के कर रहे होते हैं, लेकिन सोचो कि ये चीज अल्लाह मियां ने कितनी कॉम्प्लिकेटेड बनाई है। एंड दिस इज जस्ट वन ग्लोमेरुलस एंड वी हैव थाउजेंड्स ऑफ ग्लोमेरुलाई इन वन किडनी। ठीक है, सो अब मैं आपको इन सब की कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ। नंबर 1 बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन की खास बात है, इट इज हाईली परमिएबल। ये किसी को नहीं रोकती, जो चीज आती है उसको जाने देती है, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। सवाए इट इज हाईली परमिएबल टू वाटर, हाईली परमिएबल एंड टू स्मॉल सोल्यूट्स। जो सॉल्यूट्स है स्मॉल उनके लिए, एंड इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, देयरफॉर इट विल रिपेल, ये नहीं आने देगी अपने करीब द पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस लाइक प्रोटीन्स। It will just allow the negatively charged ions to pass through it provided they are small in size. So the basement membrane की दो बातें भूलनी नहीं आप लोगों ने। Number 1, it is highly permeable to किन-किन चीजों के, और ये किन-किन चीजों, Water and small fluids. yes, water, neutral. yes, and small solutes. And it is since it is positively charged, therefore it will repel the positively charged ions, which are the proteins, and it will let the cations, which are small in size, to pass through it. ठीक, ये भी बात हो गई। So ये हमें बेसमेंट मेम्ब्रेन की हमने बात की है। Now coming to the capillaries. आप अक्सर capillaries बनाते हो। Do you find any difference in this capillary and the rest of the capillaries that you see in the body? It is single line, single cell line, ठीक है? Spaces ज्यादा हैं Fenestrated सब होती उसमें। हैं। Very very good. This is fenestrated. इसमें छाननी की तरह सुराख हैं, इसके अंदर स्पेसेस हैं। ये देख रहे हैं आप बेटा? सो इस कैपिलरी की खास बात है कि इट इज फेनेस्ट्रेटेड। ये हर चीज को खास हद से बड़े सोल्यूट को ये नहीं जाने देती है, मॉलिक्यूल को, लेकिन वैसे इट इज वेरी परमिएबल। आगे बेसमेंट मेम्ब्रेन का इज अनदर बैरियर, जो कि आगे से बैरियर आ जाता है। समझ आ गई आपको? सो दिस इज द वन ऑफ द बैरियर्स, ये जो आपका एंडोथेलियल सेल लाइनिंग है। सो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस capillary lining is that it is fenestrated and it allows a lot of things to pass through it, provided they are smaller in size, बहुत ज्यादा बड़ी ना हो। और जो तीसरी चीज है, this is the mesangium. इसको ये this is something new for you. आपको पता है बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर कोलेजन कौन सी वाली होती है? 1 2 3 4, कौन सी वाली? कोलेजन टाइप 4, शाबाश, कोलेजन टाइप 4। बुक में पढ़ोगे तो लिखा होगा जो लेमिना डेंसा, लेमिना ल्यूसिडा है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रही, मैं वो चीजें सिर्फ आपको बता रही हूँ जो कि प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है फ्रॉम डिजीज पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो अब नाउ कमिंग टू, हमने बेसमेंट मेम्ब्रेन कर लिया, कैपिलरी, नाउ कमिंग टू मेसेंजियम व्हिच विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। सो दिस मेसेंजियम is laid down by the cells which are called mesangial cells. In mesangial cells के तीन काम है। Number 1, here it lays down the collagen, collagen बनाती है। Number 2, it is contractile, contractile है थोड़ी सी, जैसे myoepithelial cell है, ये हल्का सा contractile है, तो ये इधर से उधर मूव भी कर जाता है, ठीक है। एंड नंबर 3, ये प्रोलिफरेट भी करता है, यानी कि ये जिसको कहते हैं ना, कोई अगर इरिटेशन हो या इन्फ्लेमेशन हो तो उसमें ये प्रोलिफरेट भी करता है रीजेनरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ रहे हो आप बेटा? सो इसका काम इम्यून है काफी, यानी कि इम्यून सिस्टम के साथ थोड़ा बहुत इसके साथ लिंक्ड है। सो व्हाट डज इट डू? नंबर 1, इट इज गोइंग टू ले डाउन द कोलेजन। नंबर 2, it is going to it is a little contractile, and number 3, it can proliferate. Immune. शाबाश, हाँ जी। अच्छा, अब हम लेट्स डू इट अगेन। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, आई एम अगेन टेलिंग यू बेटा। इसमें से आपको एमसीक्यूज इसकी एप्लीकेशन पे आएंगे, और अगर आपको ये समझ ना आया तो सारा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस रट्टा होगा,
और अगर सिर्फ ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो एवरीथिंग विल बी कॉन्सेप्ट बेस्ड. सो लेट्स रिवाइज इट अगेन. नंबर 1, Bowman's glomerulus is made. अभी तक हमने ये बात की कि किडनी में 4 चीजें हैं जिनका डिसऑर्डर कैन कॉज डिजीजेस. One is glomerulus, then tubules, then interstitium, and then blood vessels. लेकिन याद रखो किडनी के इंटरस्टिशियम को हम इंटरस्टिशियम ही कहते हैं, सिर्फ हम ग्लोमेरुलस के इंटरस्टिशियम को मेसेंजियम कहते हैं. Okay, so the glomerulus is made up of two types, two areas. One is the Bowman's capsule and the second one are the tuft of capillaries. The Bowman's capsule की खास बात ये है, number 1, it is bilayered with an outer parietal layer and an inner visceral layer and an intermediate space which is clear. बहुत important है, please remember the space is clear with no cells, right? And number 4, that the visceral epithelium is in close contact with the basement membrane or with this capillary tuft. और ये सारा का सारा ये जो एरो बना हुआ है ना, ये जितनी मैं चीजें दिखा रही हूँ, this take part in the ultrafiltration, in the production of that ultrafiltrate जो so called urine eventually बनाता है. समझ आ गई आपको? Now coming to the glomerulus. बेटा समझ आ गई Bowman's की? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Beta, so now coming to the capillaries. So capillary वाला part जो glomerulus का है, that is made up of 3 types of मतलब different चीजें. One, from outerwards towards inward, we have the basement membrane. Then we have the capillaries, and then we have the mesangium. What is mesangium? अब हम start इससे करेंगे. G, it is actually the matrix. It is actually the supporting tissue which holds actually everything in place. And the matrix is laid down, the mesangium is laid down by cells which are called mesangial cells. These mesangial cells have 3 functions. Number 1, they lay down the collagen. Number 2, they are contractile. And number 3, they have protective activity. ठीक है बेटा, बिल्कुल वही वाला काम जो कि आप समझो न्यूट्रोफिल्स या मैक्रोफेजेस कर रहे होते हैं. डायपोडिसिस मूव कर जाते हैं, प्रोलिफरेट कर जाते हैं, राइट? सो ये इसमें नंबर. अब आप अगर कैपिलरीज में जाओ तो द ओनली थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट कैपिलरीज इज दे आर फेनेस्ट्रेटेड, ताकि और ज्यादा लीकी हो जाए. एंड देन कमिंग टू द basement membrane, it is made up of type 4 collagen. It is highly permeable to water, solutes, and small molecules. Whereas it is positively charged, so it repels the positively charged proteins or bade molecules. और जो आखिरी बैरियर है, अभी मैंने आपसे कहा ना कि this is the barrier. This is the barrier. ये जो आपको नजर आ रहा है, तो इसके अंदर तो हमने ये भी ऐड किए हुए. तो इनका क्या है? इनका भी तो कोई काम होगा ना. इनका ये काम है कि these are the slit like spaces. अगर कोई चीज यहां से बच के यहां पहुंच जाए और बेसमेंट मेम्ब्रेन से बच के यहां आ जाए, so these slits are provided with nephrin. Glomerulonephritis, nephron से याद रखो. Nephrin is a protein which is present in these slit like spaces. और वो selectively permeable है. बस ये मैं दोबारा आपको बता दूं, इन पोडोसाइट्स के दरमियान, because this is the podocyte, these are the foot processes. In between the foot processes we have slit like spaces, और slit like spaces का जो base है ना, this is called nephrin. It is selectively permeable. हर एक को नहीं जाने देता. कोई अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन से निकल भी आएगा ना, उसको नहीं जाने देगा. ये चेक्स है बार बार हर जगह पे, ताकि हमारी बॉडी का हीमोडायनामिक सिस्टम सही रहे. So let's have a closer look here. Okay, this is the. अब मैं जो चीज आपको दिखा रही हूँ ना, I am not showing you the mesangium. I am just showing you the area which is actually involved in ultrafiltration. So inside you have this one is the lumen. समझ आ गई बेटा? ये lumen of the capillary है, जो कि असल में ये है. अब जब मैं आपको दिखाऊंगी तो अंदर की तरफ मैं ये दिखाऊंगी और फिर मैं इस तरह ऊपर जाऊंगी.
समझ आ गई? ये कैपिलरी ल्यूमन है। ये क्या है? फेनेस्ट्रेटेड एंडोथीलियल लाइनिंग। ठीक है बेटा? ठीक है बेटा? Yes, Yes, ma'am. Yes, बाहर ma'am. है Yes. ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन बेटा। ये ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन नजर आ रही है आपको। इसके बाहर ये है हमारे, ये क्या है? Podocytes. पोडोसाइट्स हैं, फुट प्रोसेसेस हैं, और हर फुट प्रोसेस आपने देखा दूसरे से अलग है। दे नेवर यूनाइट। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आगे जाके आपका एमसीक्यू बनेगा, ये कभी यूनाइट नहीं करते। सो इनके दरमियान एक स्लिट होती है जिसको हम फिल्ट्रेशन स्लिट कहते हैं, और इस जगह पे वो प्रोटीन होती है नेफ्रिन। सो कुछ अगर यहां से बच के इधर आ जाता है तो ये इसको फर्दर ब्लॉक कर देती है, बाहर नहीं जाने देती नेफ्रिन जो है। ठीक है? सो अब देखिए ब्लड के अंदर तो सब कुछ है। यू हैव आरबीसीज इन द ब्लड, यू हैव एल्ब्यूमिन इन द ब्लड, यू हैव इलेक्ट्रोलाइट्स इन द ब्लड, सब कुछ ब्लड के अंदर है। सो चंद चीजें विल बी अलाउड टू पास थ्रू दिस फिल्ट्रेशन बैरियर। ठीक है? और वो चीजें क्या हैं? वाटर, स्मॉल सॉल्यूट्स या स्मॉल नेगेटिवली चार्ज्ड कैटाइंस। ठीक है? और क्या चीजें इसमें से नहीं जा सकती? लार्जर सॉल्वेंट्स, RBCs, albumins, बड़ी प्रोटीन्स, they cannot pass through it. समझ आ गई बेटा? Yes, sir. And this makes our filtration barrier. डन? आगे चले? Yes, ma'am. चलो अब ये मुझे आप बताओ, कुछ समझ आ रहा है देखकर इसको? ये बंद कर देती हूँ अगर मैं, बताओ कुछ समझ आ रहा है? Yes. Yes. ये ma'am. जहां पे भी Asthma आपको ये डैश नजर आएगा ना, ये स्पेसेस, Fenestrated capsule. शाबाश, this is the Fenestrated. fenestrated capillary Fenestrated endothelium. Excellent. What is this? And then basement membrane. Very good, very good. What is this? Food Podocytes. process of podocytes. Podocytes. शाबाश शाबाश। और इन पोडोसाइट्स के जो दरमियान में स्लिट्स हैं, Basement nephrin. Filtration नेफ्रिन slit. है इसमें, you have a Nephrin protein. protein. शाबाश। जो चीजें देखो, ये स्पेस कितनी ज्यादा है। सो जो चीज यहां से इफ इट गेन्स एक्सेस हेयर, उसको बेसमेंट मेम्ब्रेन रोकेगा। अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन ना रोक सका तो ये स्लिट रोकेगी। सो देयर इज चेक एंड बैलेंस एट एवरी स्टेप। ठीक है बेटा? अब मुझे जरा सिर्फ तस्वीर देखकर बताओ, आप 30 सेकंड्स लेकर देखो, आप लोगों को कुछ स्ट्रक्चर समझने में आसानी हो रही है? कुछ समझ आ रही है? Yes, ma'am. Yes, sir. Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी वेरी गुड। ठीक है? अब मैं आप पे एरो रखूंगी और वन बाय वन आपने बताने। व्हाट इज दिस एरिया? Mesangium. Mesangial cell. This is mesangium, right? Mesangium. Very good. This is This is mesangial cell. shabash. Acha, somebody else. What is the function of mesangial cell? To produce collagen. Collagen. Very good one. कोई और And बताए? it is linked with immune system. Contractile. Contractile. And proliferative. बेटा proliferate MCQ करता है। है। Function of mesangium is an MCQ. Remember, it's an MCQ. Different चीजें दी होंगी और आपने उसमें से जो false होगा वो correct करना, मतलब tick करना होगा, right? So it's an MCQ. So number 1 is Collagen down the base. Collagen. Lay down collagen. Number 2, It is contractile. very good. Number 3, It can proliferate. very good. ठीक है? So now coming to the third part, this is the endothelium. G, Hassan, what is peculiar about this endothelium? Its extra spaces are fenestrated है। शाबाश। अच्छा मरियम बिलाल, आप मुझे ये बताएं कि what Yes. is very special about the basement membrane here? Well, the basement membrane is highly permeable Permeable. शाबाश, very good. to small solutes in water. शाबाश, very And good. as it is positive, it is positively charged, so it repels positively charged substances like proteins, Very albumin. well done. Thank you. बहुत अच्छे। ओके जी, अब मुझे बिलाल, बिलाल इधर ही हो? बिलाल, बिलाल,
If you Yes, will ma'am. not respond, बिल्कुल बेटा, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आप लोगों को आवाज आ रही है? हॉस्टल में बेटा कनेक्शन आ रहा है आपका? यस मैम आ रहा है, लेकिन बहुत अड़ के आ रहा है। अच्छा, चलो बेटा, समझ आ रही है? मुझे ये बताओ, ये ये क्या प्रोसेसेस हैं, ये वाले, ये जो हैं? फुट प्लेट फिर शाबाश, बताओ क्या है बेटा? Podocytes. नहीं, बिलाल बताएगा। दिस इज बिलाल्स टर्न। जी बेटा बिलाल, दीज आर मैम पोडोसाइट्स बेटा, ठीक है? यस, ये हाँ, फुट प्लेट्स हैं मैम, और साथ में शाबाश, स्लिट्स हैं, और वेरी वेल, उनके नीचे पोडोसाइट्स हैं। वेरी वेल डन, शाबाश। और जो हमारी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है, उसमें क्या क्या आता है? नंबर 1, बेसमेंट मेम्ब्रेन मैम, एंडोथेलियल सेल, बेसमेंट मेम्ब्रेन, Endothelium, then basement membrane. and these Food podocytes process. पोडोसाइट, शाबाश, Food processing. शाबाश, ठीक है? तो ये मैं उंगली रखती हूँ इस पे, कर्सर रखती हूँ, मुझे बताते जाएं, आप लोग पिक कर रहे हैं इसमें। ये क्या है? Mesangial cells. Mesangial cells है। Mesangial cells. ये क्या है? सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या है? Podocyte, Podocyte. ये क्या है? capillary Penetrating endothelium, Penetrated शाबाश, endothelium. Penetrated excellent. endothelium. Basement Basement membrane. membrane. glomerular basement membrane, Basement So membrane. proud of you all. Thank you. बहुत जबरदस्त भाई। अच्छा, अब जो मैं आपको नेफ्रिन बता रही थी ना बेटा, सो दो पोडोसाइट्स के दरमियान देयर इज अ स्पेस, जिसको कि हम फिल्ट्रेशन स्पेस कहते हैं, फिल्ट्रेशन स्लिट कहते हैं। इसके अंदर वी हैव अ प्रोटीन, दिस इज वन पोडोसाइट, दिस इज अनदर पोडोसाइट, एंड इन बिटवीन देयर इज अ स्मॉल स्पेस, जिसको कि हम फिल्ट्रेशन स्लिट कहते हैं, एंड वी हैव अ प्रोटीन हियर, जिसको हम नेफ्रिन कहते हैं। सो इफ एनीथिंग ट्राइज टू गेन एक्सेस हियर, और यहाँ पे वो नहीं है suitable for the body, so this nephrin protein will prevent it going or becoming part of the ultrafiltrate, ठीक है? और आपने देखा है कि ये visceral podocytes जो हैं actually, या visceral epithelium is actually a part of Bowman space, लेकिन ये कितना जैसे जड़ें नहीं किसी के अंदर गई होती, इस तरीके से it is embedded in the basement, glomerular basement membrane. That's why it makes a part of the ultrafiltration, वो जो हमारी process है सारा। समझ आई है बेटा? So visceral epithelium, मैंने कहा था ना कि it is very closely incorporated with the glomerular basement membrane. So this is how, उसकी बिल्कुल छोटी छोटी समझो roots अंदर गई हुई हैं, ताकि वो sense कर सके। अब ये देखो, दिस इज हाउ वी सी द स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप। मैं ये सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ ताकि जब आप अपनी बुक में देखो ना, तो आपको ये फिगर्स अनयूजुअल ना लगे, आपको कुछ समझ आए कि उसमें क्या बना हुआ है। सो दिस इज द ग्लोमेरुलस बेटा, दिस होल इज द ग्लोमेरुलस। दिस, व्हाट इज दिस? ये वाला शाबाश, दिस इज द पैराइटल पार्ट ऑफ Bowman's capsule. Very good. And what is this white wali cheese? Cap intermediate space. ma'am, space of Bowman's capsule. Shabash, shabash. And can you see the visceral layer here? कहीं इधर नजर आ रही है? Yes. बेटा एक्चुअल No, ma'am. प्रैक्टिस में हमें visceral layer नजर नहीं आती। हाँ, क्योंकि वो इतना ज्यादा incorporate हुई हुई होती है with the ये सारा capillary tuft that we hardly see it. ये मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक एक डिजीज में एक एक चीज प्रोमिनेंट होती है और डिजीज का नाम बदलता जाता है। सो जस्ट रिमेंबर कि हमें नॉर्मली विसरल एपिथेलियम इतना अच्छे से नजर नहीं आता, हम तुक्का मार सकते हैं लेकिन हम बहुत एश्योरिटी से बेटा नहीं कह सकते, ठीक है? सो दिस इज द विसरल लेयर एंड व्हाट इज ये सारी की सारी चीज? Mesangium. दिस इज द दिस इज द वो कैपिलरी Glomerulus cap. हाँ बेटा, ये जो पिंक पिंक नजर आ रहा है, दिस इज द मेसेंजियम। Yes, ma'am. ठीक है बेटा, ये जो पिंक पिंक नजर आ रहा है ना, ये वाला सारा, दिस ऑल इज मेसेंजियम। और जहां आपको इसके अंदर ये स्पेस नजर आ रही है, दिस इज द कैपिलरी। कर्सर नजर आ रहा है बेटा आपको? दिस Yes, इज ma'am. द कैपिलरी, दिस स्पेस इज द कैपिलरी, दिस स्पेस इज द कैपिलरी। और जो इस मेसेंजियम में बड़ी बड़ी चीजें नजर आ रही हैं, दे आर द मेसेंजियल सेल्स, ठीक है? सो अब ये याद रखो, दिस इज द ग्लोमेरुलस with an outer parietal layer, single lined, then a clear Bowman space, then a visceral layer which we hardly see or hardly appreciate, then we have the tuft of capillaries,
इस टफ्ट ऑफ कैपिलरीज में जो जो ये ल्यूमेन नजर आ रहे हैं, ये आरबीसीज भी आपको कुछ कुछ नजर आ रहे हैं। सो इसमें आपको कोई इन्फ्लेमेटरी सेल नहीं नजर आ रहा। इट्स अ वेरी क्लीन, नॉर्मल ग्लोमेरुलस इज वेरी क्लीन. You just see these spaces. This is capillary, and everything which is present just adjacent to its wall is the endothelium. और जो बाकी सब पिंक एरिया में नजर आ रहे हैं, these are the mesangial cells. Mesangium. ठीक है बेटा, अब आगे आ जाओ. The second important part which can cause diseases are these tubules. ये सब tubules, cut section of tubules है. देख रहे हो आप बेटा, ये tubules है. और ये जो पिंक पिंक एरिया, दिस इज द इंटरस्टिशियम. नाउ वी विल नॉट कॉल इट मिजेंजियम. मिजेंजियम हम सिर्फ इस वाले को कहेंगे. बस ये सारा इंटरस्टिशियम है बेटा. जी बेटा, हम इसमें मेसेंजियम इंटरस्टिशियम के डिफरेंस रिपीट कर देंगे. बेटा इंटरस्टिशियम का असल मकसद होता है, इंटरस्टिशियम होता है बेटा जो ना सपोर्टिंग एरिया होता है. ठीक है. सो हर तरह का जो होता है ना मिजेंजियम, वो एक ही तरह का होता है. उसमें कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसमें सेल्स होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, मतलब ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स इन द इंटरस्टिशियम. लेकिन जो ये वाला इसका जो मिजेंजियम है ना, दिस एक्चुअली इज अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ चीज, नॉट एन ऑर्डिनरी टाइप ऑफ थिंग. इसके अंदर खास सेल होता है जिसके अंदर एक ही सेल के अंदर बड़ी डिफरेंट क्वालिटीज हैं. इट कैन कॉन्ट्रैक्ट, इट कैन प्रोलिफरेट एंड इट कैन ले डाउन सम अदर मटीरियल. ठीक है बेटा. So ये जैसे interstitium में it's a fibroblast which lays down the fibrous tissue. So बस इसको आप यही समझो कि ये एक स्पेशल चीज है जिसका एक स्पेशल नाम है. जैसे आपके हाथ हैं, आपके हाथ की उंगलियों को क्या कहते हैं? फिंगर्स. और थंब कहते हैं अंगूठे को. पांव की उंगलियों को क्या कहते हैं? टोज. ठीक है, चीजें पैरेलल ही हैं लेकिन हमने डिफरेंट नाम दिया हुआ है, वरना यही नहीं पता चलेगा कि हम पांव की उंगलियों की बात कर रहे हैं कि हाथ की उंगलियों की. बिल्कुल ऐसे ये चीज समझ लें आप, ये थोड़ी थोड़ी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है और हम इनके लिए जस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू हम इनको ये वाले नाम दे देते हैं. ठीक है बेटा. यस मैम. अच्छा, थैंक यू. और यू वेलकम बेटा. और ये जो है ना, दिस इज अ कैपिलरी. ये कैपिलरी है जो कि बाहर की है. डू नॉट कंफ्यूज दिस कैपिलरी विद दिस कैपिलरी, because this is a fenestrated capillary. ये एक regular capillary है. ठीक है. This is more permeable. This is lesser permeable as compared to this one. So मैं अभी आपको इसमें दो चीजें सिर्फ बता रही हूँ. The different areas that we are going to study during this week, जिसमें एक एक फर्क चीज, एक एक फर्क प्रॉब्लम करती है. जैसे the glomerulus, then we have the tubules, then we have this interstitium, and then we have the blood vessel. मैं बाकी चीजों की डिटेल में नहीं जाऊंगी बेटा, हम सिर्फ ग्लोमेरुलस पे कॉम्प्लिकेट करेंगे. अगर आपको ग्लोमेरुलस समझ आ गया तो बाकी चीजें आप खुद भी पढ़ोगे तो समझ आ जाए. सो माय एम इज कि आपको ये समझ आ जाए. सो कैन यू मेक आउट व्हाट इज दिस? शाबाश. व्हाट इज Glomerulus. शाबाश. व्हाट इज दिस? Parietal membrane. लेयर. शाबाश. ये वाला बेटा Space. स्पेस है. अंदर क्या है आपके? Capillary duct. कैपिलरीज. अब ये देखो, अब मैं आपको बताती हूँ. ये आपको जो पिंक पिंक एरिया जितना भी नजर आ रहा है ना, थोड़ा या ज्यादा, दिस इज द मेसेंजियम. Mesangium. ठीक है. एंड दीज स्पेसेस, छोटी छोटी स्पेसेस विद इन दिस, ये वाली Capillaries. कैपिलरी. एंड द सेल व्हिच इज जस्ट एडजेसेंट टू इट, इसके अंदर ही लगा है. Mesangial cells. नो 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 बेटा, दैट इज द एंडोथेलियम. हाँ, जो कैपिलरी के साथ है ना, मेसेंजियल सेल जरा बड़ा होता है. एंड यू विल फाइंड इट अ लिटिल अवे फ्रॉम द कैपिलरी. जैसे दिस वन इज द एंडोथेलियल सेल, ये कैपिलरी है, इसके अंदर ये आरबीसी है, ये इसको जो लाइन कर रहा है, दैट स्मॉल सेल इज एन एंडोथेलियल सेल. मेसेंजियल सेल ये है जो पिंक एरिया में पड़ा है, ये आपका एंडोथेलियल सेल है जो नेक्स्ट टू द स्पेस पड़ा है. आपको समझ आ रही है? Yes, ma'am. दिस इज अ डिफिकल्ट Yes, ma'am. कॉन्सेप्ट बेटा, ये हमें भी रिपीटेडली कर करके आए. सो आप लोगों के लिए आई डू नॉट एक्सपेक्ट कि आपको एकदम से ही ये समझ आ जाएगा. सो ये याद रखो कि जो कैपिलरीज हैं उनमें आरबीसीज होते हैं और जो बिल्कुल उसको लाइन कर रहा है ना स्पेस को सेल, ओनली दैट इज द एंडोथेलियल सेल.
बाकी पिंक एरिया में जो सेल्स पड़े हुए हैं ये बड़े वाले, these are the mesangial cells. mesangial cells. और जो rest of the areas of the kidney are the tubules. Then you have this interstitium, ये वाला पिंक वाला, and blood vessel. इनकी डिजीजेस हम सेपरेटली करेंगे। ओके, अब जो चीज आप लोगों को आंखें बंद करो और आनी चाहिए, दैट इज द नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड द नेफ्रिटिक सिंड्रोम। So if you know this basic pathology, a basic physiology, you will be able to, or histology, you will be able to understand a lot of it. So how do the renal diseases, patients with renal diseases present? जैसे अगर कोई respiratory patient है, वो कैसे present करता है? dyspnea के साथ. So how will a patient with renal diseases present? So these are the Renal pain. four areas. So renal failure is something जो हम कह रहे हैं. Patient नहीं कहेगा मुझे renal failure है. Patient आके, these are the clues जिसकी वजह से you have to think that I must consider kidney in my differential. One is oliguria. So जो patient renal failure में जा रहा होगा ना, वो ये नहीं कहेगा मैं renal failure में जा रहा हूँ, वो कहेगा डॉक्टर साहब मुझे पेशाब बहुत थोड़ा आता है. So number one is oliguria. The complaint that patient will come with is कि मेरी frequency या मेरा volume बहुत थोड़ा है of urine. So this is called oliguria. Oliguria means lesser volume of urine, right? The second thing with which the patient can come is pain. Pain. अगर पेन वो कहता है तो आपके ज़हन में क्या क्या चीज आनी चाहिए? लोकेशन किस जगह पर पेन है? लोकेशन किधर है? शाबाश, लेकिन रिलेटेड Spontaneous टू किडनी, हाँ, यूटीआई आनी चाहिए अगर उसको विद ड्यूरिंग मैच्योरेशन हो रही है, एंड नंबर 2 Kidney अगर उसको stone. फ्लैंक्स में हो रही है तो रीनल स्टोन्स. शाबाश, यही दो डिफरेंशियल्स बनते हैं, एंड वेरी रेयरली इन एडवांस्ड मैलिग्नेंसीज ऑफ किडनी. ठीक है. सो हेमेचूरिया, व्हाट इज हेमेचूरिया? व्हाट डू यू मीन बाय Blood हेमेचूरिया? in blood in Blood in the urine. शाबाश, हेमेचूरिया इज ब्लड इन यूरिन. हेमेचूरिया इज ऑफ टू टाइप्स बेटा. या तो आंख से नजर आता है, वो कहता है जी जब मैं करता हूँ मेरे लाल रंग होता है, मेरे खून आता है उसमें. सो दिस इज ग्रॉस हेमेचूरिया, यू कैन सी विद द नेकेड आई. और दूसरा होता है कि उसको तो पता नहीं चलता, लेकिन जब हम यूरिन का एनालिसिस करते हैं ना, रीनल फंक्शन टेस्ट, तो उसमें माइक्रोस्कोपिकली आता है. सो हेमेचूरिया, हम इनके डीटीज बेटा डिजीजेस के साथ करेंगे. मैं सिर्फ अभी आपको बता रही हूँ कि आपके जहन में ये होना चाहिए. ठीक है. और चौथी चीज, किस तरह पेशेंट प्रेजेंट कर सकते हैं? edema, foot edema, एडीमा. ankle edema. बेटा किडनी का एडीमा Anasarca. फेशियल एडिमा, शाबाश. और सबसे पहले प्रेजेंट करता है बैगी एरिया से, पेरीऑर्बिटल, पेरीऑर्बिटल. Periorbital शाबाश. edema. ये जो हमारे हल्कों वाले एरियाज हैं, डार्क सर्कल वाले एरियाज, सबसे ज्यादा ये उधर प्रेजेंट करते हैं. सो अगर एक बंदा कहे कि मुझे एडीमा है, द एडीमा कैन बी बिकॉज ऑफ द ascites, कैन बी बिकॉज ऑफ हार्ट फेलियर, इट कैन बी बिकॉज ऑफ लिवर फेलियर, इट कैन बी बिकॉज ऑफ रीनल फेलियर. लेकिन फिर आप पूछ लो भाई एडीमा किधर है तुम्हें? तो द एडीमा बेसिकली इज यूजुअली पेरीऑर्बिटल. फर्स्ट साइन, remember, MCQ, MCQ, MCQ. Periorbital edema, always think of nephrotic syndrome. या something related to kidney. ठीक है. सो मैं ये चीजें इसलिए आपको पहले क्लिनिकल बता रही हूँ ताकि आपको ये, जब मैं आपको पढ़ाती जाऊंगी ना बेटा, जिस डिजीज में जो जो चीज आएगी आपने आगे उसके लिख देने. जैसे जिस कंडीशन में पेन आएगी आपने पेन के आगे लिखते जाने. यही 4 सिम्टम्स का चार्ट आपने बनाना है. एक तरफ कॉलम में आपने ओलिगुरिया लिखना है, एक में पेन, एक में हेमेचूरिया, एक में एडीमा, और जो जो उसके नीचे आता है वो लिखते जाओ. एट द एंड ऑफ वो जो किडनी का आपके टॉपिक है, आपका पूरे डीडीज तैयार होंगे, बिकॉज यू गेट सिनेरियोज विद ऑल दीज थिंग्स. आपने डीडी खुद बनाना होता है. सो बजाय इसके कि एंड में बनाओ, आपको मैंने शुरू में इसलिए दिए कि आप साथ साथ डीडीज बनाते जाओ. समझ आ रही है बेटा? सो ईदर द पेशेंट विल प्रेजेंट विद ओलिगुरिया or the patient will present with pain. पेन का आप लोगों ने खुद ही डीडी बना दिए, या उसको यूटीआई होगा या रीनल स्टोन्स होंगे या एडवांस्ड रीनल मैलिग्नेंसी होगी. Then we have hematuria and then we have edema. ठीक है. So there are a few terms जो कि आपको बार बार पूछी जाती हैं even in your MCQs.
Azotemia and uremia is one of them. MCQ, MCQ, MCQ. Azotemia or uremia pe you get MCQ. So, जब भी renal function, what is the function of kidneys? Is to get rid of urea and creatinine and other waste materials from the body. यही है ना उसका function. So, अगर Yes, kidney ma'am. function ठीक नहीं कर रहा होगा, so there will be elevated blood urea level, blood urea nitrogen level, and creatinine level. So, जो चीजें वो excrete कर रही है, वो चीजें body में build up होना शुरू हो जाएंगी. And we'll come to know by means of renal function tests कि जनाब इसको तो एजोटीमिया है, इसका तो क्रिएटिनिन लेवल 1 पॉइंट पता नहीं कितना है 3 है, इसका तो यूरिया लेवल is 100 plus. So this shows that the patient has azotemia. Azotemia means you have elevated, emia is the word that is used for blood. Sometimes you can even detect कि आपका blood urea nitrogen level और serum creatinine level ज़्यादा है. समझ रहे हो? This is an indirect indication that kidney is not doing or working properly. ठीक है बेटा? This is azotemia. Then there is only elevated blood urea nitrogen and creatinine level. और मैंने levels लिखी हुई है बेटा. क्या टाइम हो गया? 12 बज गए. Okay beta, please I expect you all to please go through this and go through nephrotic and nephritic syndrome. We'll take it up tomorrow inshallah. ये बहुत जरूरी है जो आज. जी बेटा. मैम वो जो आपने एलएमएस के एमसीक्यूज का कहा है तो वो हमें कब पता चलेगा कि वो अपलोड है? लेक्चर के दरमियान. आप बताएंगी? लेक्चर के दरमियान आपको एमसीक्यू आ जाएगा. ठीक है? ओके. सो मैं आपको ब्रेक दूंगी 4-5 मिनट की. कहाँ से पढ़ना किडनी, बिग से या मीडियम से? बेटा आप अगर मीडियम से भी करते हो ना टू स्टार्ट विद दैट इज ओके. ठीक है? मीडियम से भी ठीक. लार्ज से मैम ये लेक्चर्स कब अपलोड होंगे एलएमएस पे? आज बेटा हो जाएंगे. अभी तक नहीं हुए पिछले? नहीं मैम. मैं बेटा आज करवा देती हूँ. आई एम सॉरी अगर नहीं हुए, मैं करवा देती हूँ. ठीक है? टेक केयर बेटा. अल्लाह हाफिज. इंशाल्लाह कल मिलेंगे. अल्लाह हाफिज मैम. थैंक यू. लास्ट में सर क्या हाल चाल है सर? अल्लाह का शुक्र सर आप ठीक हैं?